Hello students, myself Manish Sharma. Today I am going to discuss life processes, nutrition, the first part, and in nutrition, the nutrition in plants, that is photosynthesis. This is the second video for my 10th class students. Now in this video, we will discuss the introduction and the landmarks of the photosynthesis. A very popular saying regarding the photosynthesis is all flesh is grass. What does it mean? It means all the consumers, that is animals, all the consumers directly or indirectly depend upon the plants for their food material, right? So plant synthesize the food and that food is utilized by the consumers, that is the animals. Okay, so very popular saying regarding the photosynthesis. I hope कि आप लोगों ने लोअर क्लासेस में ये पढ़ा होगा, right? Now, as far as the introduction of the photosynthesis is concerned, first I would like to define the photosynthesis. Photosynthesis literal meaning means the formation of the food, but as far as the technical language is concerned, photosynthesis refers to the production of the organic material by the using of inorganic constituent. Now, what are the inorganic constituent? Here, the carbon dioxide react with water. Now this is the raw material basically, and two essential component, that is sunlight and of course chlorophyll, that is a green pigment. Now in the presence of these two essential element, the inorganic raw material transform into C6H12O6 organic plus water plus oxygen plus energy. Now here 6 molecule of carbon dioxide and 12 molecules of water give rise to 1 molecule of the glucose, 6 molecule of water, 6 molecule of oxygen, and this oxygen evolved or is a byproduct of the photosynthesis. बहुत important चीज़ें हैं, right? अगर इस स्टेज पे आप लोग क्लियर कर लोगे तो जो लोग मेडिकल स्ट्रीम के हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आगे हम किस तरीके से फोटोसिंथेसिस का जब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो द फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस एंड ऑल इज वेरी वेरी क्लियर इन द 11th स्टैंडर्ड, राइट? सो अगर यहाँ देखो तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो 12 molecule of water आपस में रिएक्ट कर रहे हैं and they give rise to 1 molecule of glucose,
then 6 molecule of water, 6 molecule of oxygen, and energy. E for energy. Now here, very important thing, this is a glucose, right? This reaction is a redox reaction, right? Redox reaction. That means the reaction having two phases, right? Two phases. Pehla, oxidation, और दूसरा रिडक्शन, राइट? तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि इस पूरी रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कंपटीशन. अगर हम गौर करें तो जो वाटर मॉलिक्यूल है आपका, ये जो है वाटर मॉलिक्यूल, नाउ this water molecule undergo the oxidation process and give rise to the oxygen, right? Very important, very important. पूछते हैं आपसे जो ऑक्सीजन निकल रही है comes from the carbon dioxide or the water. The answer is water. So oxygen, मैंने यहाँ सबसे पहले एक टर्म यूज किया था कि ऑक्सीजन जो है वो आपका बाई प्रोडक्ट है. प्लांट का बिल्कुल मकसद नहीं है कि वो ऑक्सीजन आपके लिए बनाए, बट द रिएक्शन में वो ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहा है. द मेन एम ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज फॉर्मेशन, राइट? नाउ द सेकेंड इज दिस, द कार्बन. Carbon get reduced into the glucose, right? So this is reduction and this is oxidation. So this is very very important for the competition, right? जो आपकी photosynthetic reaction है उसमें दो reactions हो रही हैं. One is the oxidation reaction, water का oxidation हो रहा है and give rise to the oxygen, right? And second is the reduction process. Reduction, reduce कौन हो रहा है? Carbon. Carbon reduce होके क्या बना रहा है? Glucose. This is very very important for the competition, right? So simple definition. देखो सारे रॉ मटेरियल और एसेंशियल मटेरियल आपके सामने है, तो डेफिनेशन बहुत सिंपल हो जाती है, राइट? कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, गिव राइज टू द ग्लूकोज, वाटर, ऑक्सीजन एंड एनर्जी. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये ध्यान रखना कि एनर्जी सिर्फ रेस्पिरेशन में ही इवॉल्व नहीं होती, एनर्जी आपको फोटोसिंथेसिस में भी मिलती है, राइट? तो प्लांट के अंदर ये एडवांटेज है कि वो रेस्पिरेशन में भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है एज वेल एज वो फोटोसिंथेसिस पे भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है. ओके, इज इट क्लियर? बहुत सिंपल था. तो हमने डेफिनेशन देखी. डेफिनेशन में कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं, कौन कौन से इसेंशियल हैं, और आपका प्रोडक्ट क्या है और आपका बाई प्रोडक्ट क्या है, राइट? नाउ कम टू द लैंडमार्क्स. अब देखिए, लैंडमार्क्स की जब हम बात करते हैं तो लैंडमार्क्स में हम इसमें हिस्ट्री लेके चलते हैं कि क्या क्या प्रोग्रेस हुई है, कौन कौन से वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फोटोसिंथेसिस पर वर्कआउट किया है. तो फर्स्ट साइंटिस्ट हम लेके चल रहे हैं बार्नस, 1898. बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इन द फोटोसिंथेसिस. बार्नस in 1898, right? Barnes coined the term photosynthesis.
राइट। बार्नस कॉइंड द टर्म फोटोसिंथेसिस। तो बार्नस ने क्या किया, 1898 में फोटोसिंथेसिस टर्म दिया, राइट। इसने एक चीज और भी बताई, इसको बाइफरकेट भी किया था, इसका मतलब भी बताया था। द फोटोन 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 रेफर्स टू द लाइट, राइट। जो सन से जो लाइट आ रही है वो लाइट किस फॉर्म में आ रही है, एनर्जी पैकेट्स, दैट एनर्जी पैकेट इज कॉल्ड फोटॉन्स, ठीक है। तो फोटॉन्स के यूज करके ये फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। कौन सा ऑर्गेनिक मटेरियल, ग्लूकोज, ठीक है। ये ध्यान रखना, जब प्लांट जो है वो ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है, ये पहले भी मैंने बताया है, प्लांट ग्लूकोज फॉर्म करता है, फिर उसके बाद ट्रांसलोकेट दिस ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज एंड द स्टोरेज फॉर्म इज स्टार्च। ओके, तीनों ध्यान रखने हैं आपको। ट्रांसलोकेटिंग फॉर्म क्या है, फॉर्मेशन फॉर्म क्या है, और स्टोरेज फॉर्म क्या है, राइट। Now the second name is Aristotle and Theophrastus। बहुत important name है in the history of biology, right? Aristotle and Theophrastus 320 BC। देखिए एरिस्टोटल is the father of biology and father of zoology। ध्यान रखना, कंपटीशन में काम आएगा। एरिस्टोटल क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जोलॉजी, और हमारे थियोफ्रेस्टस क्या है, फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। अब ये जो थे, इन दोनों ने मिलके एक बात कही है, दैट इज all plants absorb minerals directly from the soil। बहुत सिंपल सी बात है बट इंपॉर्टेंट है। Theophrastus and Aristotle says all the plants absorb the minerals directly or indirectly from the soil। ओके, बहुत सिंपल है। जितने भी प्लांट्स हैं वो सॉइल से जो मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करेंगे एंड दे यूज दैट मिनरल्स इन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। नाउ द थर्ड नेम इन द history of photosynthesis is a remarkable name, or is basically is a landmark in the photosynthesis, that is Calvin। Calvin का नाम आप लोगों ने सुना होगा, राइट। Calvin 1954, Melvin Calvin, right? Melvin Calvin 1954, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रपोज्ड C3 साइकिल, राइट। C3 साइकिल और बायो सिंथेटिक फेज और डार्क रिएक्शन। कैल्विन प्रपोज द डार्क रिएक्शन। आगे हम डिस्कस करेंगे। देर आर टू इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, दैट इज डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन, राइट। तो जो कैल्विन थे उन्होंने C3 साइकिल या बायोसिंथेटिक पाथवे या फिर डार्क रिएक्शन आपको प्रपोज किया है। पूरी साइकिल है इसकी, ठीक है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन H एंड स्लैक।
H and Slack 1965. Another important name, proposed C4 cycle. There are two different types of plant. One is C3 plant. Here the first stable compound which is formed in C3 plant is 3 carbon, while in C4 plant is the 4 carbon, right? We will discuss later on. So C3 cycle proposed in tropical grasses, right? जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर इन्होंने प्रपोज ये किया है, राइट? तो C4 प्लांट में एक थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ डिफरेंस में. C4 प्लांट पे कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज और इंक्रीज होने का इम्पैक्ट नहीं आता, राइट? इफ द level of the carbon dioxide or level concentration of the carbon dioxide decreases in the vicinity of the plant, then the food production in C4 plant continue, while in C3 plant it will stop. ठीक है, ध्यान रखना कि अगर प्लांट की वेसिनिटी में सराउंडिंग में कंसंट्रेशन CO2 का कम या ज़्यादा होता है तो C4 प्लांट में फूड प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज दे हैव द इंटरनल सोर्स ऑफ CO2. लेकिन C3 प्लांट वो फूड प्रोडक्शन स्टॉप कर देंगे, राइट? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज रूहानी. रूहानी 1973 में 1973 अगर हम इसकी बात करें तो रूहानी ने जो इम्पोर्टेंस बताई है कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं या फोटोसिंथेसिस हैं, दे बेसिकली यूज द स्पेसिफिकली फॉर द डेजर्ट प्लांट. अगर हम कहें तो इसने एक इम्पॉर्टेंट पाथवे, दिस इज न्यू फॉर द 10th स्टूडेंट, इसने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पाथवे प्रपोज किया है जिसको मैं शॉर्ट में कहता हूँ कैम पाथवे, राइट? रूहानी in 1973 proposed a very important pathway in the desert plant. ध्यान रखना, डेजर्ट या जीरोफिटिक प्लांट जो हैं इनमें वाटर कम होगा, तो इस पाथवे को हम बोलते हैं कैम प्लांट या कैम पाथवे. क्रेसिल्यूसियन एसिड मेटाबॉलिक पाथवे. क्रेसिल्यूसियन एसिड मेटाबॉलिक पाथवे या क्रेसिल्यूसियन एसिड मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हो, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट पाथवे प्रपोज किया रूहानी ने. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड लैंडमार्क्स इन द फोटोसिंथेसिस. आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. ओके, थैंक यू.